Hello friends, this is the sixth video lecture of Constitutional Law MCQ series. So the first question here is, which provision of the Constitution recognizes right of accused to remain silent? So the option are Article 19, Article 21, Article 20, Article 14. So the right answer over here is option 3, Article 20. तो ये आर्टिकल 20 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये कहता है कि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस ऑफ हिमसेल्फ. सो ये कहता है कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई हमसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे जो कि हमारे गिल्ट को डायरेक्टली करते हैं प्रूफ, या अगर हम एडमिट करते हैं कि हमारा ये गिल्ट है तो उसको माना नहीं जाएगा. सो वन कैन नॉट बी विटनेस ऑफ वंस ओन क्राइम. तो इस आर्टिकल का यही है, ये एक फ्रीडम देता है जिसको कहते हैं कि राइट ऑफ साइलेंस ऑल्सो और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट वन कैन नॉट बी विटनेस इन हिज ओन केस. और इसमें एक बहुत फेमस केस है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इस केस में कहा गया था कि जो 3 प्रोमिनेंट इंटरोगेशन टेक्निक्स होते हैं जो कि इस्तेमाल करती है पुलिस, जैसे कि ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस, ये जो 3 वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, ये वॉयलेटिव है आर्टिकल 23 का. तो इसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 23 को, तो ये टेस्ट नहीं होने चाहिए. So now the second question over here is, who decides in parliament whether a bill is a money bill or not? So the option over here is Speaker of Lok Sabha, Chairperson of Raj Sabha, President of India, Minister for Parliamentary Affairs. So the right answer over here is Speaker of Lok Sabha. तो ये क्या आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 110 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि स्पीकर शैल बी द फाइनल अथॉरिटी हु विल डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, वेदर इट इज मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल. So now the third question over here is, the GST was introduced by, so the first option is article 246A, second option is article 279A, third option is article 368A, and fourth option is without amending the constitution. So GST was introduced by option 2, this article 279A of the constitution. It was introduced by 101st amendment. और आर्टिकल 279A को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की भी रिक्वायरमेंट थी पार्लियामेंट में, एज वेल एज रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स की भी रिक्वायरमेंट थी. So article 279A is the right answer. MCQ number 4, public order and police falls in which list in the 7th schedule of the constitution? So the options are union list, state list, concurrent list, all lists. So the right answer over here is state list. तो ये public order और police जो होती है वो लिस्ट 2 जो कि स्टेट लिस्ट है, इन 7th शेड्यूल में एंट्री 1 और 2 में पाई जाती है. MCQ नंबर 5, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली came to be called as National Capital Territory of Delhi by virtue of, so amendment to Article 239, by insertion of Article 239AA, by appointing a governor, none of the above. So the right answer over here is option 2, by insertion of Article 239AA in the Constitution. ये MCQ थोड़ा important है, अक्सर पूछ लेते हैं कि दिल्ली जो है वो किस आर्टिकल के तहत उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है. सो ये अक्सर करके एग्जाम्स में आ जाता है. सो दिस MCQ इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 239AA. नाउ MCQ नंबर 6, control over the subordinate courts including posting and promotion of persons belonging to judicial services vests with the, so options are state government, central government, President of India, High Court.
So the right answer over here is हाई कोर्ट. तो ये आर्टिकल 235 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास पावर होगी टू डिसाइड द प्रमोशन एंड पोस्टिंग ऑफ पर्सन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. नाउ एमसीक्यू नंबर 7. चैलेंज टू अ जजमेंट passed by division bench of high court upholding a decree of partition is maintainable as civil appeal, as special leave petition, as reference to Supreme Court only if division bench gives certification of appeal. तो इसका आंसर होगा एज अ स्पेशल लीव पिटीशन. तो अगर डिवीजन बेंच कोई देती है क्वेश्चन तो वो अपील कर सकते हैं अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है. बट स्पेशल लीव पिटीशन जो है आर्टिकल 136 में दिया हुआ है, जिसमें ये ऐसे मैटर ऑफ राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो उसको लेना चाहेगी कि नहीं. MCQ number 8. Right to privacy is a part of fundamental right. So under Article 14, 21, 32, Article 19. So the right answer is Article 21. ये फेमस केस था KS पुट्टास्वामी का, और रिसेंटली कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. आर्टिकल 310 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies doctrine of pleasure, doctrine of separation, doctrine of proportionality or doctrine of res judicata. So the right option is doctrine of pleasure. तो आर्टिकल 310 कहता क्या है? ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनके पास पावर है कि जो ये सिविल सर्विसेज में जो एम्प्लॉयज हैं, डिफेंस में जो स्टाफ हैं और जितने भी लोग हैं, ये अपनी पोस्ट तभी तक होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है. और डिस्पाइट जो भी इनका टेन्योर हो, बट अगर प्रेसिडेंट के प्लेजर के हिसाब से इनकी ड्यूरेशन हो सकती है. So it embodies, so Article 310 embodies English doctrine of pleasure. Now MCQ number 10. Writ of mandamus will not lie against, so it will not lie against president. So the right answer over here is president. This is also given in Article 361. It is given in Article 361. So it is, so writ of mandamus will not lie against president. It is given in Article 361. So this was the final question. Thank you all.